जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वरसानो धाम। जय जय श्री राधे। Welcome to Krishna Bhakti Ras 86. Today's katha that I am going to share is about Lakha Bhagat. This took place around 500 to 600 years ago in Rajasthan. Lakha Bhagat was from a very low caste, but his devotion was very high. And as we know, our Lord, our sweet Lord, Sri Krishna, he doesn't look at caste or creed. He looks at the bhakti. We people may look at high caste, low caste, rich, poor. The Lord looks only at bhakti, nothing else. Only at the love that we have for him, nothing else. And Lakha Bhagat and his wife were not very rich, but still daily they would do Sant Seva. They would prepare bhojan for 50 saints every day, and more than 100 would come. Somehow they would be able to feed them. Once there was a famine in the village. The famine lasted for, I think, almost a year. But Lakha Bhagat and his wife somehow managed to keep preparing food every day. And it would again happen that no matter how many they prepared for, more than that would come. So end of the day, there was nothing left for them to eat. This went on for some time. Finally, Lakha Bhagat told his wife, it's very hard like this. I think we have to leave from here and move to another city, another village. But the Lord was listening. He didn't want them to leave. That day or that night, the village panchayat met. And they said, we have to do something to help the poor people of this village because the famine has taken so many months and people just don't get food to eat. So all the rich people, they agreed, they pledged that they will give so much food to the poor people, they will allocate every day. Then somebody said, what about Lakha Bhagat? He does so much Sant Seva. We must also help him. So they all agreed. They said that we will give him 1 man. एक मन होता है ना, हिंदी में मन कहते हैं. 1 man of wheat and 1 cow that produces milk. The moment they said that, same time at midnight, the Lord appeared to Lakha Bhagat in his dream and said, don't leave. Tomorrow, somebody is going to come and give you 1 man of wheat and 1 milk producing cow, and keep that wheat in your go down. Don't measure it, don't weigh it. And he did that. And then for weeks and weeks and weeks, that wheat would never finish. It just kept on. This is how the Lord had planned it. And so everything was fine. Now, Lakha Bhagat had a daughter, and she came of marriageable age. But where was the money to arrange her wedding, her marriage? Because all their money, whatever they had, what they were earning, was always being used only in Sant Seva. So anyway, Lakha Bhagat decided that I'm going to Jagannath Puri. Now Jagannath Puri was 800 kilometers away. And he said, I'm going to go there by doing Dandavat Parikrama. आप जानते हैं दंडवत परिक्रमा क्या होती है? आपने शायद देखा होगा वृंदावन में या गोवर्धन गिरिराज पे कई भगत दंडवत परिक्रमा ही करते हैं. यानी कि दंडवत किया और जहाँ तक हमारे हाथ हैं
वहाँ जैसे पत्थर या निशान रखा और फिर अगली दंडवत वहीं से की। तो ऐसे करते करते उसके तो अब लखा भगत को तो महीने महीने लग गए जगन्नाथपुरी पहुँचते। एक दिन आया, बाकी 4 किलोमीटर रह गए थे। अब दंडवत करते जाते तो पता नहीं कितना समय लगता, लेकिन उस दिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी ने, प्रभु जगन्नाथ ने अपने पुजारी से कहा कि इस स्थली पे जाओ, यहाँ लखा भगत हैं, उन्हें बताया वो कैसे दिखते हैं वो, और उनको यहाँ पालकी पे ले आओ। तो पुजारी थे, उनको तो मानना था जो भी प्रभु ने कहा। तो गए वहाँ और देखा लखा भगत वहाँ बैठे थे। उन्हें कहा कि प्रभु ने भेजा है और आप इस पालकी में बैठ जाएं। तो लखा भगत ने कहा आप सब पुजारी हैं और मैं ऐसे कैसे बैठूंगा पालकी में? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु की आज्ञा है, तो आज्ञा को तो मानना है ना, आज्ञा तो माननी है ना। तो बैठ गए पालकी में और जल्दी पहुंच गए जगन्नाथपुरी। दर्शन किए, दर्शन ही नहीं किए। हमारे प्यारे प्रभु आए, उनको अपने प्रत्यक्ष दर्शन किए, उनका आलिंगन किया। और ये डाउट बिल्कुल ना रखे मन में, तो ये कैसे हो सकता है, प्रभु कैसे आएंगे, कैसे दर्शन देंगे, क्या कुछ नामुमकिन है क्या प्रभु के लिए? कुछ है क्या? वो तो एक बार आँख खोले और बंद करे तो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकते हैं और 10 ब्रह्मांड ऐसे नए बना सकते हैं। और अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारे साथ कैसे लीला करेंगे प्रभु? पहली सीढ़ी तो विश्वास ही होती है ना भक्ति की। तो खैर, तो आलिंगन किया और फिर प्रभु ने लखा भगत से पूछा तुम्हारी बेटी की शादी होनी चाहिए अभी, तो कैसे होगी? देखो ना, प्रभु को इतनी चिंता थी अपने भक्तों के, उनका घर कैसे चलता है, बेटी की शादी। तो लखा भगत ने कहा प्रभु आप चिंता न करें, हो जाएगी। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सुनना है मुझे। तुम यहाँ से मेरे मंदिर से हुंडी ले जाओ 1000 रुपये की। अब 1000 रुपये उन दिनों में तो बड़ी रकम थी, 500-600 वर्ष हो गए। तो हुंडी से ले गए वो 1000 की हुंडी ले गए। उनको लेनी तो नहीं, जैसे मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज्ञा की प्रभु ने। तो गए वापस और 1000 में से 900 रुपये तो उन्होंने संत सेवा में लगा दिए, लखा भगत और उसकी धर्मपत्नी ने। 100 रुपये से अपनी बेटी की शादी की। यह है भगत का स्वभाव। और दुनियादारी जीव होते तो कहते प्रभु 1000 क्यों दे रहे, आप तो 10,000 दे दो मुझे। लेकिन इसी बात पे तो खुश होते हैं हमारे प्रभु कि उनके भगत कैसे उन पे पूरा समर्पण करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और फिर प्रभु भी देखिए ना कैसे देखभाल करते हैं ऐसे भक्तों की। थी ना बहुत प्यारी कथा। ऐसे ही श्री कृष्ण कथा सुनते रहें, वृंदावन आते रहें, आते रहें, आते रहें। श्री डोंगरे जी भी कहते हैं कि 1 वर्ष में कम से कम 1 महीने के लिए हमें अपना घर छोड़ना चाहिए, घर से बाहर रहने की आदत डालनी चाहिए। 1 महीना किसी ऐसे स्थान पे जैसे वृंदावन है, हरिद्वार है, किसी नदी पे जाके 1 महीना भजन करें। बाकी 11 महीने तो हम दुनियादारी में लगे हुए हैं, है ना। तो कथाएं सुनते रहें, प्रभु का नाम जपते रहें और संत सेवा करते रहें। जय जय श्री राधे सभी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री वृंदावन धाम।